Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So last time we have seen the derivative, that is on Wednesday. Today we will see what is the integration. There are two types of integration. One is called definite integration, in which you have given the two limits, that is from a to b f of x dx. This kind of integration is known as definite integration, and other is indefinite integration, which is of the form integration fx dx. Okay, so we will first see what is indefinite integration, and then we will going to move towards definite integration. Even if we don't do definite integration, still it's fine, even if we only study indefinite integration. Okay, so let me. So what is indefinite integration? If fx and gx are two functions such that derivative of g of x is equal to f of x, then we say that integration of f of x is equal to g of x. But in general, we write integration of f of x dx is equal to gx plus c. Okay, and c is called constant of integration. So what is the integration? It is the opposite process of the derivative. So if you have derivative of g of x is equal to f of x, then if you get integration, you will get g of x back with some constant. Okay, that constant is known as कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. सो आई कैन ऑलवेज राइट जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जीरो. ओके, और जी एक्स प्लस थ्री और जी एक्स प्लस फाइव, सबका डेरिवेटिव आपको एफ एक्स ही मिलेगा. इसीलिए एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट भी चाहिए अपने को. दैट इज वाई वी इन्वॉल्व दैट कांस्टेंट जी एक्स प्लस सिक्स, and we read as integral f of x with respect to x is gx. So in short, what is the derivative? We can also denote it by g dash of x. It is same as f of x. Therefore, if I have this integration fx dx is equal to g of x, then what I can write? Instead of f of x, I can write this g dash of x. Okay, and then uh, we can always write the, instead of f of x, we can write the g dash of x, so that we will integrate g dash x is equal to gx. So this is the basic formula. fx को क्या बोलेंगे हम लोग? The function which is to be integrated. Therefore fx we called it as integrand, and gx is called integral or primitive of f of x. Sometimes it is also called as antiderivative of f of x. Antiderivative of f of x, क्योंकि gx का डेरिवेटिव क्या है? fx है. So fx का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? gx. Okay. So fx gx two function, derivative of g of x is equal to f of x, then integration of f of x is equal to g of x. Your derivative, and here is your integration. If you apply both, you will get the same function back. That is the meaning over here. Let us come to the standard formula. जैसे मैंने बोला था डेरिवेटिव में स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको सेम डेरिवेटिव फॉर्मूलेज के ऊपर इंटीग्रल फॉर्मूलेज मिलेंगे. So we will see how to use this formula to obtain the integration. Since derivative of g is equal to f, so integration of f will be equal to g. Okay, so we call it over here. First, what is derivative of x? Derivative of x is equal to 1. Therefore, we can have
इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x। तो जिसका डेरिवेटिव है वो उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x एंड वी ऑलवेज ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x प्लस c। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। देन वी हैव सीन द दिस फॉर्मूला x रेज टू n। अभी इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? How to calculate the derivative of this function? This is a constant which we can take outside of the derivative. We will just derivative with respect to x, that is x raised to n plus 1. अभी x raised to n वाला formula apply करो. What is the formula? n plus 1 x raised to n plus 1 minus 1. एक power subtract करना है. So cancel out this n plus 1 from the numerator and denominator. Cancel out this 1 and minus 1. You will just get x raised to n. Keep that x raised to n as the answer. So you got this x raised to n as a answer. So therefore integration of x raised to n क्या होगा, x raised to n plus 1 upon n plus 1. ये फॉर्मूला जो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है वो 1 के लिए अप्लाई नहीं होता है, -1 के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा. Okay, and if denominator is 0, the function is not defined. Therefore, this formula cannot be used for the -1. Otherwise, this is very important formula. आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का आधा जो है वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है. सेम टू में यूनिट 5 का आधा हिस्सा every time we will see this integration formula, that is integration of x raised to n is equal to x raised to n plus 1 upon 1 n plus 1. What is the derivative of log x? It is 1 by x. Therefore integration of 1 by x क्या होगा, log x होगा. और हम लोग मॉड में लेते हैं क्योंकि log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है. Log is not defined for the negative number. Therefore we take modulus for the logarithm. Next, derivative of e raised to x. What is the derivative of e raised to x? It is e raised to x. So integration of e raised to x क्या होगा, again e raised to x होगा. Let us move further. Derivative of a raised to x क्या होता है, a raised to x into log a. तो हम लोग log a को नीचे रखेंगे तो ax log a upon log a आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालते हैं. a is constant, so log of a is also a constant. So log a will get cancel out and we will get this is equal to a raised to x. Okay. So what is the integration of a raised to x? It is a raised to x log a upon plus c. Next, what is derivative of minus cos x? What is derivative of sin x? Cos. And what is the derivative of cos? Derivative of cos is minus sign ना. ओके, माइनस साइन. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन एक ऑलरेडी है तो माइनस कॉस का क्या होगा, प्लस साइन. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. 7, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एज यू से कॉस एक्स. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. डेरिवेटिव ऑफ tan x square x. Then what is integration of sec square x? Integration of sec square x is equal to tan x plus c. उल्टा करो ना, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ जाता है और ये वाला टर्म यहाँ आता है. हर एक में ऐसा ही है. cos x यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन में, sin x यहाँ जाएगा.
Integration of sin x is nothing but integration of cos x. We have to apply the same thing. Okay. What is derivative of minus cot x? डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, cot x का डेरिवेटिव। हाँ, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। सो अगर आपको डेरिवेटिव समझ में आया तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी समझ में आएंगे। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स tan x। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, सो माइनस है तो प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा। Therefore, integration of cosec x cot x will be minus cosec x plus c. 12th one, derivative of tan inverse of x, ये मैंने नहीं सिखाया था शायद, it is equal to 1 upon 1 plus x square. Therefore, integration of 1 upon 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c. And last one, I guess, derivative of sin inverse x is equal to root of 1 minus x square in the denominator, 1 upon root of 1 minus x square. Therefore, integration of 1 upon 1 minus x square dx will be equal to sin inverse x plus c. This 13 formulas is very important. We will solve the example based on this formulas. Let us go to the further point, that is algebra for integration. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स इट मीन? फर्स्ट इज इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स विल बी इक्वल टू, this integration will be equal to integration fx dx plus integration gx dx. Similarly, if here it is a minus sign, then you will again get a minus sign over here. Integration fx minus gx is equal to integration fx dx minus integration gx dx. Okay. Example, integration of x plus sin x dx कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. अभी बताओ इंटीग्रेशन x dx का क्या होगा? इट इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू n. व्हाट इज द डेरिवेटिव? x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 1. देयरफॉर इट इज x स्क्वायर बाय 2. नाउ कम टू साइन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स. इट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स एफ एक्स, आप you can take k constant outside of the integration. That is the rule over here. So what is integration of 5 sec square x dx? 5 is a constant, you can take it out. Therefore it is 5 times sec square x dx. What is integration of sec square x? It is tan x. Integration of sec square x is equal to tan x. So it is 5 tan x plus c. Okay. This is very important. इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज में अगर x का रिप्लेसमेंट x के जगह पे ax प्लस b है, where a is constant, b is constant. For example, if I want to find, you know that integration of x, अभी हमने किया, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ x?
x square plus 2. Instead of x, if I have integration of 2x plus 3. So here a का वैल्यू क्या है? a is equal to 2 and b is equal to 3. Then what does the rule says? आप इंटीग्रेशन करो, एज इट इज इंटीग्रेशन करो, दैट इज 2x plus 3 स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, x के साथ क्या है 2 है, तो आप u2 यहाँ पे लिख दोगे. सो व्हाट इज द वैल्यू? 2x plus 3 square upon 4. That is your integration answer. So we will see how to apply this result in the practice. ठीक है, इसके एक दो एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर लेते हैं. आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन एक्स. x के जगह पे अभी रिप्लेस करते हैं x प्लस बी, तो क्या होगा? cos ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस सी. बट यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या? नहीं, यहाँ पे x का मल्टीपल है a, सो a से डिवाइड करना पड़ेगा. अंडरस्टूड द प्रोसेस? लेट मी रिपीट दिस फर्दर. इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन x, ये आपको पता है. अगर x के जगह पे ax प्लस b है लाइक दिस, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट दोनों साइड ax प्लस b. ओनली थिंग इज राइट हैंड साइड में a से डिवाइड करना है. Okay, now tell me what is cos of 7x plus 3? You have to write sin of 7x plus 3 divided by 7 plus c. जो भी मल्टीप्लाई है x का वो आपको डिवीजन में लेना है. अगेन वन मोर एग्जांपल, e raised to x. What is e raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है? e raised to x. So x के जगह पे x plus b होगा, तो क्या करोगे? दोनों जगह पे x plus b लिखोगे एंड देन राइट हैंड साइड पे डिवाइड बाय a. जो भी वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय a. दिस कंप्लीट्स योर. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज योर आंसर. व्हाट इज e raised to x? plus 1 upon 5. e raised to 5x plus 1 upon 5. That is your answer. Okay. Next, 1 upon 2x plus 3. What is integration of 1 upon x? Anyone? log एनीवन? कोई तो बोल रहा था फटाफट. log ऑफ x. तो यहाँ पे क्या होगा? log ऑफ 2x प्लस 3, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? log ऑफ 2x प्लस 3 को किससे डिवाइड करेंगे? विल डिवाइड बाय 2. सो इट इज 1 बाय x का आपको पता है log x आता है, तो वो लिखा एंड उसको डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड a से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई है तो a डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 3. रूट मतलब पावर आता है. आई विल राइट ओवर हियर. यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है. तो इट इज 2x प्लस 3 रेज टू हाफ. अभी मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे ही बताएं. x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? 2x प्लस 3 रेज टू
हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 हाफ प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 3/2 अपॉन 3/2, ये आंसर आएगा। बट एज x इज मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे x इज मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो आपको डिनोमिनेटर में भी 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 upon 3 upon 3. This is your answer, and you have to add the constant of integration. So let us see what they have done. 2x plus 3/2 upon 3/2 into 2, क्योंकि वो multiplied में है, 2 will get cancel out, you will get plus c. Okay, understood this concept? Now tell me, थोड़ा कठिन कर देते आपके लिए, how to integrate this. पहले तो सेपरेट आउट करो दोनों को, दैट इज 9 माइनस एक्स रेज टू 8 प्लस 4x प्लस 5 क्यूब। इसको सेपरेट आउट करो, पहले को सेपरेट इंटीग्रल लिखो प्लस दूसरे को सेकेंड इंटीग्रेशन लिखो। देन पहले में फॉर्मूला अप्लाई करो, x रेज टू n, उसका फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने जैसे बोला था 8 प्लस 1 इज 9 डिवाइडेड बाई 9। अभी x का मल्टीपल क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ x हियर? -1/2. -1/2, so you have to multiply here by -1/2 प्लस, अभी क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या आएगा बताओ, 4x प्लस 5 रेज टू 3 प्लस 1, तो कितना आएगा 4x प्लस 5 रेज टू 4 अपॉन 4, और मल्टीप्लाई कौन सा है, x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, x is multiplied with 4, so you have to take 4 in the denominator. So what is the value? It simplifies to -2/9 into 9 minus x by 2 raised to 9 plus 1/16, 4x plus 5 raised to 4 plus c. This is your answer. Okay, let us see what we have to do. ओके, यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। व्हाट आर दोज फॉर्मूलेज? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अगर आया तो आपको क्या लिखना है उसकी जगह पे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। टैन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 10th में पढ़ा है आपने, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 10th में पढ़ा है आपने। साइन क्यूब एक्स शायद नहीं पढ़ा होगा, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, एंड कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4। ये जो दो फॉर्मूलेज है, आप अरे अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सेम 3 का टॉपिक है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएगा तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों ये आता है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे से भी प्रूव कर सकते हैं, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी प्रूव कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तरीका मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा जो सेम 3 का पार्ट है। अभी हमको क्या यूज करना है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, दैट इज योर फॉर्मूला। बट x के जगह पे क्या है, 3x है, तो 3x है तो यहाँ पे 2x के जगह पे क्या आएगा, 3x आएगा। तो 3x आएगा तो कितना हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा। सो इट इज 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2। अभी क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, 1/2 बाहर निकाला, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 6x dx। अभी टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1,
Integration of 1 is x. What is integration of cos? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, और यहाँ पे साइन 6x आएगा और डिवाइडेड बाय x के साथ 6 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा. सो दिस इज माइनस साइन 6x अपॉन 6 प्लस c ब्रैकेट oblique. दिस इज योर सॉल्यूशन. व्हाट अबाउट cos क्यूब x? अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूलाज. cos क्यूब x के लिए क्या फॉर्मूला है देखो. सिक्स्थ वन फॉर्मूला क्या है, 3 cos x प्लस cos 3x upon 4. 3 cos x plus cos 3x upon 4. So let me take this formula. It is cos 3x plus 3 cos x upon 4. Now separate out integration. 1 by 4 बाहर निकालो. तो 1 by 4 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, cos 3x plus 3 cos x, sorry 3 by 4 into cos x dx. What is integration of cos x? अभी किया था हमने. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, देयरफॉर क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड में एज इट इज साइन x. सो इट इज 1 by 4 साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 by 4 इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन इज साइन x प्लस c. देयरफॉर I इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन 12 प्लस 3 by 4 into sin x plus c. That is your answer. Now this is very important. A plus b square. A plus b square का फॉर्मूला लगाओ. क्या आएगा फॉर्मूला, a square plus 2ab. What is tan and cot? Tan into cot is 1. Tan x into cot x is 1. So tan 3x into cot 3x क्या आएगा, 1 आएगा. Okay. Therefore, it is just 2 plus cos square cot square 3x. Okay. Now, लगाओ फॉर्मूला. What is tan cube x? sec square x minus 1. क्योंकि अपने पास tan square का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. प्लस 2 cot square x का फॉर्मूला क्या है, cosec square x minus 1. तो अभी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एंड -1 सो ये कैंसिल हो जाएंगे. दिस -1 and 2 will get cancel each other. Only thing is left is sec square 3x plus cosec square 3x. sec square 3x plus cosec square 3x. अभी sec square x का फॉर्मूला क्या है, what is integration of sec square x? वो 3 को भूल जाओ. sec square x का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec tan x. सो यहाँ पे क्या आएगा, tan 3x अपॉन 3. सो इट इज tan 3x अपॉन 3 क्योंकि 3 इज इन द मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, minus cosec into cot x. minus cot x, just minus cot x. So it is minus cot 3x upon 3 plus c. Don't worry if your answer is wrong, you can always वो जो इंटीग्रेशन है उसको क्या करना है, आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही आपका ये इंटीग्रेशन स्किल डेवलप होते जाएगा. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर? इसके लिए एक ट्रिक है. द ट्रिक हियर इज, वो जो 1 है न्यूमरेटर में उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज convert this integration into something which we can solve. So the trick here we will use is write this one as sin square x plus cos square x. Is this 1? ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ा था हमने कि sin square x plus cos square x is equal to 1.
ठीक है, अभी सेपरेट आउट करो, डिनोमिनेटर इज सिंगल टर्म बट न्यूमरेटर इज डबल टर्म, सो सेपरेट आउट करो, इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और सेकेंड टर्म में से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx एंड सेकेंड टर्म क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस? 1 अपॉन कॉस इज सेक, 1 अपॉन कॉस का वैल्यू होता है सेक, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है cot एक्स माइनस cot एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने कौन सा ट्रिक किया, कभी कभी हमने क्या किया 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, अभी सेकेंड के लिए ट्रिक क्या करेंगे हम लोग पता है, लेट मी थिंक, नो वन इज ज्वाइनिंग ना, ठीक है, हियर वी आर यूजिंग द ट्रिक दैट रैशनलाइज द थिंग्स। रैशनलाइज मतलब होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स है तो उसके कॉन्जुगेट क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स, सो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? इन न्यूमरेटर इट इज साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इन डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, व्हाट इज द आंसर? इट इज आंसर इज साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सिंगल टर्म में करो, दैट इज साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। व्हाट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको tan भी x सेपरेट आउट, साइन अपॉन कॉस इज टैन, तो फिर 1 अपॉन कॉस बचेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस के लिए टैन लिखेंगे एंड 1 अपॉन कॉस के लिए सेक लिखेंगे, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x प्लस what is this sin upon cos tan square x dx। what is integration of tan x sec x, किसका डेरिवेटिव tan x sec x आता है, sec x का डेरिवेटिव आता है sec x into tan x, so integration of tan x sec x will be sec x, okay, बट यहाँ पे फॉर्मूला में अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं tan square x के लिए, तो क्या करेंगे, we will substitute sec square x minus 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन आता है sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है tan x एंड 1 का इंटीग्रेशन आता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व दिस इंटीग्रेशन बाय रैशनलाइजिंग द टर्म, दैट इज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, दिस इज अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। अभी क्या करना है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग दिखा तो उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो,
Let us simplify. Equal to e raised to cos x 4x tan x upon 4 raised to x cos x. डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है, न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, देयरफॉर वी विल सेपरेट आउट न्यूमरेटर, दैट इज e रेज टू x cos x 4 रेज टू x cos x प्लस सॉरी माइनस, बीच में माइनस है, 4 रेज टू x tan x अपॉन 4 रेज टू x cos x dx. नाउ टेल मी फर्स्ट टर्म में से क्या कैंसिल होगा? cos x in the numerator, cos x is the denominator, cancel out होगा. और यहाँ पे क्या होगा? 4x 4 रेज टू x, तो यहाँ से cos x घटाया, यहाँ से 4 रेज टू x कट आउट किया, so it is can be written as e by 4 raised to x dx minus integration, instead of 1 upon cos x we write sec x, so that ये जो फॉर्मूला उसका लिख सकते हैं. Now what is integration of a raised to x? a raised to x upon log a. a का वैल्यू क्या है? e by 4. So it is e by 4 raised to x upon log of e by 4 minus sec x. इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x is sec x प्लस c. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो करो. log of a by b क्या होता है? log of a अपॉन b क्या होता है? इट इज इक्वल टू log of a माइनस log of b. तो यहाँ पे क्या आएगा? log of e minus log of 4. log of e is always equal to 1 minus log of 4. So instead of log of e by 4 I can also write log 1 minus log of 4. Okay, so it is e by 4 raised to x 1 upon 1 minus log 4 minus sec x plus c. This is your answer because of this explanation. Let us simplify this integration. Cos 2x minus cos 2a upon cos x minus cos a. Okay, how to solve this integration? Cos 2x को लिखेंगे 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square a minus 1 cos x minus cos a. So a plus 1 minus 1 will get cancel out. You get 2 outside. Cos x minus cos a, cos x plus cos a upon cos x minus cos a. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सिर्फ क्या बचेगा? cos x माइनस इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा इंटू x इंटू 1 dx. So यहाँ पे cos alpha is a constant, alpha is a constant with respect to x. You can take outside of the integration. Therefore 2 times sin x plus integration of dx is x, x cos alpha. इसको simplify कर सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो. Okay. f dash x is equal to 4x cube minus 2x plus 1. f of 2 given to be 17. Find f of x. We know that हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट प्रोसेस ऑफ ईच अदर. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स. सो हम लोग वही यूज करेंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स. एफ डैश एक्स अपने को दिया हुआ है. लेट अस यूज दिस. एफ डैश एक्स क्या है? 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 1. तो उसको लिखा. What is integration of x cube? Now you are going to tell me what is integration of x cube. X raised to 4 upon 4. X raised to 4 upon 4. So 4 is outside. Integration का वही रूल लगा. X raised to 4 upon 4. Now what is integration of this? X square by 2.
x square by 2, but 2 is outside, plus integration of 1 is x plus c. So what will happen? 4 will get cancelled out, 2 will get cancelled out, x plus c. So x raised to 4 minus x square plus x plus c. बट अभी अपने को c का वैल्यू पता नहीं है, तो c का वैल्यू पता करने के लिए what we will use? We will use the fact that we have given f of 2 is equal to 17. So we will put 2 in the left hand side, so same 2 we have to put in the right hand side. So put 2 in the left hand side and put 2 in the right hand side. So f of 2 is equal to 17 is given. Put 2 is the right hand side. 2 raised to 4 minus 2 square plus 2 plus c. This must be equal to 17. This must be equal to 17. Now calculate this 2 raised to 4 minus 12 square. कितना आएगा ये? This is 16 minus 4 plus 2 plus c is equal to 17. Now tell me what is the value of c? 16 minus 4 is 12. 12 plus 2 is 14. So we get next step will be 14 plus c is equal to 17. So c का value आएगा 3. c must be equal to 3. Okay. So we write over here c is equal to 3. Therefore fx is equal to, put the value of c in the original equation. So from the derivative we have got the value of this. Okay. Whenever you want to perform the integration, okay, तो आजकल मैं आपको FYIT में क्या पढ़ रहा हूँ? क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम. हमारा अब भी चैप्टर हो गया क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम. तो ये दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज when degree of numerator is greater than degree of denominator, perform actual division. Perform actual division. So actual division कैसे करना है? 2x plus 3 से 6x square plus 17x plus 10 को डिवाइड करना है. So multiply with 3x, what you will get? 6x square plus 9x. Subtract, first term will get cancelled out. You will get 8x plus 10. Now what factor we should come? 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8x मिलेगा. So I will take plus 4 multiply. I will get 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x plus 12 because 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया. Therefore 8x will get cancelled. 10 minus 12 will be minus 2. So आपका डिवाइजर कौन सा है? 2x plus 3. क्वोशंट क्या आया? 3x plus 4 एंड रिमाइंडर क्या है? -2. हियर हमने क्या किया है? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है. हर तरफ डिवाइजर से ये किया. सो इट इज डिविडेंड अपॉन डिवाइडर फॉर्म. ये जो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर फॉर्म. सो यहाँ से डिवाइजर कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जाएगा. तो ये फॉर्म हमको यूज करना है क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम का. क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था वही हमको यहाँ पे यूज करना है. ठीक है. क्वोशंट क्या लिखा? 3x plus 4. रिमाइंडर क्या हुआ? -2 अपॉन डिवाइजर ले लो 2x plus 3. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड. इंटीग्रेशन 3x plus 4 minus 2 times इंटीग्रेशन 1 upon 2x plus 3. ये सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट वाले में x raised to n का फॉर्मूला लगाओ. पावर इज 1, so it is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So 3x plus 4 raised to n plus 1, that is 1 plus 1 2 upon 2. एंड मल्टीप्लीकेशन में 3 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 2 into 3 बन जाएगा वो -2 times. What is integration of 1 by x? 1 by x is log x, बट यहाँ पे log of क्या आएगा? 2x plus 3 आएगा एंड डिवीजन में 2 आएगा. सो -2 times log of 2x plus 3 upon 2 plus c. अगेन द सेम. ये ax plus b वाला जो तरीका है ना वो बहुत जगह यूज हो रहा है. 2 will get cancelled.
you will get 3x plus 4 raised to 7 minus log 2x plus 3 plus c. This is your final answer. Let us take one more example of this type and we will stop. When the power of degree is equal to equal, then what will happen? Again you have to write the same thing. 5x minus 1 डिवाइड करो उसको 6x minus 8 से. So पहला कोएफिशिएंट क्या आएगा? Which number I will multiply to the 5 so that I will get 6x? You have to multiply with 6 by 5 so that first term will become 6x minus 1 के लिए 6 by 5. Calculate this. फर्स्ट टर्म का साइन निगेटिव हो जाएगा, सेकेंड टर्म का साइन पॉजिटिव हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई -8, ये मैं करके बताता हूँ. -8 प्लस 6 by 5, इसका आंसर क्या आएगा? -40 प्लस 6 upon 5 which is equal to -34 upon 5. The answer will be -34 upon 5. So apply this, the same theorem you have to going to apply. 1 minute, let me clear the ink. Apply the same theorem. 6x minus 8 upon 5x plus 1 is same as quotient, that is 6 by 5, plus remainder, that is -34 by 5, divided by divisor, that is 5x minus 1. Simplify it. 6 by 5 integration of dx minus 34 by 5 upon 5x plus 1. So 34 by 5 you can take outside of the integration. 34 by, and what is integration of 1 upon 5x minus 1? It is of the form log of ax plus b upon a. Okay, again further simplify, you get 6 by 5x minus 34 by 25 log of 5x minus 1 plus c. So this thing covers the basic idea of integration. This thing will cover basic idea of integration. हमने क्या क्या पढ़ा? We have used the standard formulas, then we have used the different techniques which can be used to solve the integration. One of the technique is simplify the expression, other technique is rationalize the expression, then you have used the technique is when it is a polynomial function, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, तो न्यूमरेटर का डिग्री, तो डिवीजन परफॉर्म करके उसको सिंप्लीफाई करना है, डिवीजन परफॉर्म करके उसको सिंप्लीफाई करना है. ये 3 हमने आज देखा. So we will stop here. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, in the next, I am repeating again, in the next bridge course session, that is in the next week, I will use that lecture as to teach the regular syllabus, and whatever bridge course syllabus is left, I will take that lectures in the semester 2. Okay, if required. If it is not required, I will not take that lecture for the bridge course, but if it is, I feel that you are not very familiar with derivative and integration, then I will again continue this bridge course series. Okay, so we will stop here.